आई हैव शेयर्ड माई स्क्रीन विथ यू. स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम. ओके. सो लास्ट टाइम कहाँ तक किया था हमने? ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, राइट? सो लेट नाउ टुडे लेट अस स्टार्ट विथ वेक्टर डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स. सो वेक्टर डिफरेंशिएशन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ. Good. So all of you are familiar with the definition, that is f prime x, which is equal to dfx by dx, and this is equal to fx plus h minus fx by x plus h minus x. So this is h, and in the limit h going to 0. ओके, ये डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है पहले के. डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन कैसे लिखते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स के वेयर एफ इज डिपेंडेंट ऑन एक्स. सो डी एफ एक्स बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स. इसको एफ प्राइम एक्स से भी डिनोट कर देते हैं हम. ओके, सो ये आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है. नाउ लेट अस एक्सटेंड इट फर्दर. सो लेट मी एक्सटेंड इट. Okay. So this is called derivative of fx with respect to x. Okay. तो ये डेफिनेशन तो सबने ही देखी है 12th में. Okay. So now let us do further. Now let us extend this definition to the vector valued function of one variable. ये क्या थी हमारी? This is a differentiation of real valued function fx of one variable, single variable x. Okay. Now we want to extend this definition to vector valued function of a single variable. So let us assume, let Ru, where R is a vector dependent on U. So U is a parameter. इसको U का भी मैं interpretation आपको बाद में बताऊंगी. So let Ru be a vector depending upon a single scalar variable U. ये U scalar है यहाँ पर. Okay. So let Ru be a vector depending upon a single scalar variable U. Okay. Now let me make this figure. Suppose this one is your R, vector R dependent on U, and this one is your R U plus delta U, where delta U is an increment in U. Then this delta R, ये क्या हो जाएगा हमारा? This is delta R, vector delta R, and this vector delta R would be R U plus delta U minus Ru. Okay. So then if you write delta R by delta U, then this is equal to R U plus delta U minus Ru by U plus delta U
minus u, and so this is equal to ru plus delta u minus ru by delta u, right? If you can write delta r by delta u, you can write it in this way, right? So this is the ordinary derivative of, now the ordinary derivative of the vector ru, okay, with respect to a single scalar variable u is given by, if you put the limit, now increment in u, and now the ordinary derivative, क्या हो रहा है आज, ordinary derivative of the vector ru with respect to scalar u is given by, ये क्या हो जाएगा आपका, let me write here, limit delta u going to 0 ru plus delta u minus ru by delta u, and now this is equal to delta r by delta u. So in this limit delta u going to 0, this is defined as dr by du, okay. And now because r is a vector and this whole thing is also a vector, so if you take the derivative once again, for example, if you write down d2r by du square, then also it is a vector. So all of its derivatives are also vectors. So पहले मैं यहाँ तक ही फिर से एक बार बता देती हूँ क्योंकि कई बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया है, okay. So let me once again start from here. So we know all of us know this definition of differentiation. तो ये हमने पहले देखी हुई है, हमने 12th क्लास में देखी है, that f prime x हम कैसे लिख देते हैं, dfx by dx, and इसको ही हम बोलते हैं derivative of fx with respect to x, okay. एंड इसकी ये इस तरह से भी हमने देखा हुआ है कि हम इस तरह से भी लिखते हैं that limit h going to 0, so in the limit h going to 0 fx plus h minus fx by h, okay. एंड y इक्वल टू एफ एक्स होता है, सो वो dy बाई डी एक्स भी हम कई जगह लिखते हैं, तो हर कई जगह कई तरह से लिखी होती है ये, एंड ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद दिस सिंपल डेफिनेशन. नाउ वी वांट टू एक्सटेंड इट फॉर द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन. सो हम स्टार्ट करते हैं. सो लेट आर यू बी ए वेक्टर डिपेंडिंग अपॉन ए सिंगल स्केलर वेरिएबल यू. आर कोई वेक्टर है जो कि यू के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड यू इज ए स्केलर, ओके. सो इसको पैरामीटर भी बोल देते हैं कई बार. सो आर यू बी ए वेक्टर डिपेंडिंग अपॉन ए सिंगल स्केलर वेरिएबल यू, देन इफ यू राइट डेल्टा आर बाई डेल्टा यू. सो यहाँ मैंने एक वेक्टर बना दिया दैट इज सपोज आर यू, एंड नाउ दिस वन इज आर यू प्लस डेल्टा यू. तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी हमारी डेल्टा आर, एंड डेल्टा आर हमारी क्या हो जाएगी आर यू प्लस डेल्टा यू माइनस आर यू. तो मैंने डेल्टा आर को यहाँ लिख दिया डेल्टा आर बाई डेल्टा यू, एंड इसको डेल्टा आर की यहाँ वैल्यू रख दी एंड डेल्टा यू की भी वैल्यू रख दी, ओके. नाउ इफ वी टेक दिस लिमिट डेल्टा यू गोइंग टू 0, then in this limit this one is defined as the derivative of r with respect to u, okay. And because r is a vector, so dr by du is also a vector. And now if you take the higher order derivatives like d2r by du square or d cube r by du cube, then they are all vectors. Ab you can see ki for example if you have, let me take this example, okay.
let us compute the derivative of let us say this function f which is dependent on t. Okay, so t square I plus t cube j. Okay, so whenever you see this type of a function and if you want to differentiate it, तो हम क्या करते हैं, we write down f prime t, okay, which is df by dt. Okay, this is equal to 2t I plus 3t square j. इसी तरह से लिख देते हैं ना हम. Now look at this. Now if we use suppose this definition which you have read just now, तो then look at it. अब हमारा क्या हो जाएगा, we are now using our definition. इसको कुछ नाम दे दो. Okay, let me call A. Okay, so let us use this definition A. Okay, so by equation A you can see f prime t, ये क्या आ जाएगा, f prime t equal to limit delta t going to 0. Okay, and यहाँ से अब लिखो, तो यहाँ क्या है, t square, so t plus delta t whole square I plus t plus delta t whole cube j, right, and minus t square I plus t cube j, and now divided by ये क्या था हमारा, डेल्टा t. Okay, so now look at it, this is equal to, open करो इसे, so limit डेल्टा t going to 0, and यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, t square plus डेल्टा t square plus 2t डेल्टा t, okay, times I plus t cube plus delta t cube plus 3t square delta t plus 3t delta t square. Okay, a plus b whole square and a plus b whole cube का मैंने फॉर्मूला लगाया है और कुछ नहीं किया. j, यहाँ पर j आ जाएगा, j मैं यहाँ लिखे दे रही हूँ, j के माइनस, अब ये टर्म आ जाएगी, सो टी स्क्वायर आई प्लस टी क्यूब j एंड नाउ बाई डेल्टा टी. ओके, सो यू कैन सी फ्रॉम हियर कि यहाँ पर ये टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे. ओके, एंड नाउ यू गेट, हुआ ना माइनस, हाँ ठीक है. कभी कभार टाइपो एरर हो जाती है ना, सो नो प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच. सो लिमिट, सो इन द लिमिट डेल्टा टी गोइंग टू 0, ये क्या आ जाएगा अब आपका, यहां से आ गया आपका डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी, राइट, आई, एंड यहां से क्या आ गया आपका प्लस j, एंड ये आ गया आपका डेल्टा टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर डेल्टा टी प्लस 3t डेल्टा टी क्यूब बाई डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी सारे में कॉमन है, सो डेल्टा टी बाई डेल्टा टी इज 1, एंड देन take the limit. So if you take the limit, then you can see from here that you get 2t I plus 3t square j.
सो इस मेथड से इफ यू लुक एट इट देन अगेन यू गेट द सेम आंसर जो कि तुम्हें यहाँ से मिला था. So in general, what we do in general to differentiate a vector valued function, to differentiate a vector expressed in terms of I, j, k, what we do, we simply differentiate its coefficients. Okay? तो जब भी हमें वेक्टर को डिफरेंशिएट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि उसके कोफिशिएंट को तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं और वेक्टर जहां जाए जैसे आई एंड जे एज इट इज हम लिख देते हैं. ओके, इज दैट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Okay, so let us do next thing. Okay, now let us interpret this u. What is u? Okay, so interpretation of u. कहाँ पर ये? हाँ, डेल्टा टी, एक डेल्टा टी क्यूब आ गया ना. हाँ, तो स्क्वायर आएगा ये. These things you can correct. Okay, no problem. Now in particular, suppose if we take this ru, इस वेक्टर को r को जो हमने r कैपिटल R बोला हुआ है ना, उसको suppose in particular I take a position vector. Okay, तो पोजीशन वेक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल r से, राइट? सो सपोज आई कंसीडर ए पोजीशन वेक्टर आर यू. ओके, सो आर यू इज ए पोजीशन वेक्टर एंड नाउ सो पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब हुआ? आर यू इज ए वेक्टर जॉइनिंग द ओरिजिन ओ टू एनी पॉइंट एक्स वाई जेड. यही होता है ना आपको पोजीशन वेक्टर. इफ यू रिमेंबर पोजीशन वेक्टर मैंने आपको बताया था, राइट? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? if you from the origin, अगर वो डायरेक्ट उस पॉइंट तक, if you have 3 axes, okay, if you have 3 axes x y z, ये मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो ये फिगर बताया था मैंने आपको. this is x axis, y axis, z axis, right? and this is your origin. Okay, now what is position vector? if you are considering any point in space, then तुमको मैं दिखाई दे रही हूँ? Yes, ma'am. सो कैसे समझाऊं? रुको, देखो ये x by एक्सिस है. ओके, नाउ यू हैव अनदर एक्सिस z, राइट? दिख रहा है? Yes, ma'am. Okay, so you have x axis, y axis and z axis. Now if you consider one point here somewhere in space, okay, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x, y and z, right? x axis, y axis and z axis. तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x, y, z. Now if you join this point to the origin, then this vector is known as a position vector. Okay, और पोजीशन वेक्टर को मैंने आपको बताया था कि आप कैसे डिनोट करते हो. पोजीशन वेक्टर r इज xi प्लस बाई जे प्लस जेड के, राइट? क्यों करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, राइट? क्योंकि हम यहाँ पर इस पॉइंट पर कैसे पहुंच रहे हैं? ये पॉइंट स्पेस में है, तो हम कैसे पहुंच रहे हैं? हम एक्स एक्सिस की तरफ डिस्टेंस x चल रहे हैं, फिर बाई एक्सिस की तरफ हम डिस्टेंस बाई चल रहे हैं, एंड फिर हम जेड एक्सिस की तरफ डिस्टेंस z चल रहे हैं, तब हम उस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं. इसीलिए हम उसके कोऑर्डिनेट x, y, z लेते हैं. ओके, बट अगर डायरेक्टली ओरिजिन से तुम उस पॉइंट पे पहुंच जाते हो तब उसे हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, राइट? ओके, सो पोजीशन वेक्टर आप लोगों ने पहले देखा हुआ है. सो लेट अस डू फर्दर. लेट मी मेक अनदर डायग्राम. I remove this one. मैम, हाँ, बोलो. मैम अगर कोई पॉइंट ओरिएंटेशन मूल बिंदु से कनेक्ट ना हो तो वो पोजीशन वेक्टर नहीं होगा ना? मूल बिंदु से कनेक्ट ना हो तो उसके फिर कोऑर्डिनेट फिर अलग होंगे.
उसका उसको कोई ना कोई तो ओरिजिन मान के कहीं से तो चलोगे, वो पॉइंट को फिर आप उसके अकॉर्डिंगली सब बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसका ओरिजिन चेंज हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। पोजीशन वेक्टर तो फिर भी होगा वो, ओके। बट उसमें डिफाइन करना पड़ता है, वो मैं आपको अभी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बता सकती ना, ये आपको इतना ही समझ में आ जाए इतना ही बहुत है, राइट। वो सब चीजें भी होती हैं मगर फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ये ग्रेविटी थ्योरीज वगैरह में तो सब करते हैं, यही तो करते हैं और क्या करते हैं, लेकिन वहाँ फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं, कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स होता जाता है, और कुछ नहीं है, हो सब जाता है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्यों तुम्हारे में नहीं हो रही होगी, मेरे में तो हो रही थी, हो रही होगी, ओके ओके। सो इन पर्टिकुलर तुमने पिनअप नहीं किया होगा, पिनअप कर लो तुम, ओके। इफ RU is a position vector joining origin O and any point x by z, ओके। सो सपोज ये यहाँ पर मैं बनाती हूँ RU, okay. So now as u changes from u to u plus delta u, then RU changes from RU to RU plus delta u. So उसको मैं इस तरह से बना देती हूँ, सपोज दिस इज RU plus delta u, okay. कर्व बन रहा है कोई भी, ये इस तरह से, थोड़ा अच्छा नहीं बना, रुको फिर से बना देती हूँ मैं। This one is RU, this one is RU plus delta U, and this vector is delta R, okay, which is R U plus delta U minus RU, okay. So then what is RU? R क्या है हमारा, पोजीशन वेक्टर। सो R is a position vector, you can write it in this form xi plus by j plus zk, and now R is dependent on u, so this x is dependent on u, by u and zu हम लिख सकते हैं, okay. So x by z, they are all functions of u, okay. Now what happens as u changes, okay, then this terminal point of R, u change होगा तो क्या होगा, R change होगा, R चेंज होगा तो देन इसका टर्मिनल पॉइंट ये ऐसे चलना शुरू होगा, ये वेक्टर इस तरह से चलना शुरू होगा यहाँ से यहाँ तक,
तो ये जब चलना शुरू होगा तो देन इट विल डिस्क्राइब ए कर्व. सो दिस इज नोन एज स्पेस कर्व. ओके, दिस इज नोन एज स्पेस कर्व. Okay. Now as u changes, the terminal point of this vector r, this describes a curve called space curve. Having parametric equations x equal to xu, y equal to yu, and z equal to zu. Okay, then if we write delta r by delta u, then this delta r by delta u, this is equal to ru plus delta u minus ru by delta u, and this is a vector, this thing is a vector this is a vector in the direction of delta r if delta u is positive, and this is a vector in the direction of minus delta r if delta u is negative, right? And if delta u tends to 0, then in this limit delta, in the limit delta u going to 0, this delta r by delta u, this thing is defined as dr by du. And what is dr by du? Dr by du, this thing dr by du is in the direction of the tangent to the curve at x, y, z, means x at this point. Okay. So if this limit exists, then this is a vector, this is a tangent vector to the curve at this point x, y, z, dr by du. Now if suppose I write dr by du, now dr by du, what is dr by du? You can write it as dx by du I plus dy by duj plus dz by du k. अब ये तो हुई हमारी जनरल चीज. नाउ सपोज u को मैं ले लेती हूँ टाइम t. ओके, सपोज u इज द टाइम t, देन व्हाट हैपन्स?
Now suppose if u is the time t, तब क्या होगा? So if you take u is time, then this is dr by dt, and dr by dt represents, dr by dt से क्या represent करते हैं हम? Velocity. Okay, so dr by dt represents the velocity with which the terminal point of r describes the curve. Okay, and अगर फिर if we write dv by dt, then it represents the acceleration along the curve. Okay, so ये इसका इस तरह से interpretation है. Okay, so dr by dt, if in particular if you take, so this dr by dt represents the velocity v with which the terminal point of r describes the curve. Similarly, dv by dt, this represents acceleration along the curve. So इस तरह से ये है. So अगर यहाँ तक तुम्हें समझ में आया हो तो फिर हम आगे चल सकते हैं. Let me once again explain from here. Okay, ये तो पता है कि वेक्टर का ये इनिशियल पॉइंट कहलाता है और जहाँ पर ये एक एरो होता है उसे टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं, राइट? ओके, सो लेट अस कंसीडर, यहाँ पर मैंने क्या किया, वी कंसीडर ए वेक्टर यू, वेक्टर आर, तो जो कि पोजीशन वेक्टर है, एंड यहाँ पर कोई पॉइंट है हमारा एक्स वाई जेड, ये कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड जिसका कि पोजीशन वेक्टर मैंने लिया था आर यू. ओके, व्हेन u चेंजेस फ्रॉम u टू डेल्टा u, तो क्या होता है कि ये वेक्टर ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम r टू आर यू प्लस डेल्टा यू. ओके, अब मैंने क्या किया था फिर यहाँ पर, बिकॉज इट इज ए पोजिशन वेक्टर, सो आई कैन राइट इट इन फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. ओके, सो आई हैव रिटन दिस पोजिशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. अब ये डिपेंडेंट है u पर, तो मैंने यहाँ क्या किया कि r को आर यू लिख दिया, एंड यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एक्स यू वाई यू एंड जेड यू, बिकॉज r इज डिपेंडेंट ऑन u, तो उसका ईच कंपोनेंट भी डिपेंडेंट होगा u के ऊपर. ओके, नाउ एज u चेंजेज, तो जैसे जैसे u चेंज होता है तो क्या होता है कि ये टर्मिनल पॉइंट ये चलना शुरू करेगा कहीं पर भी. ओके, तो ये टर्मिनल पॉइंट जैसे जो चलता है जिस कर्व पर, दैट इज कॉल्ड स्पेस कर्व. ओके, सो ये कर्व कुछ भी बना सकता है, सो दिस कर्व इज नोन एज स्पेस कर्व. ओके, सो एज u changes the terminal point of r describes a curve, this is called a space curve. एंड स्पेस कर्व है तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन, माने एक्स वाई जेड की अलग अलग लिखी हुई है, उसे पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं. अभी तुम इतना ही समझ लो. ओके, तो मैंने इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख दी. नाउ वी नो कि डेल्टा आर बाई डेल्टा यू हम इस तरह से लिख सकते हैं, राइट? सो मैंने उस तरह से लिख दिया. नाउ दिस डेल्टा आर बाई डेल्टा यू, दिस इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा आर, मीन्स इन दिस डायरेक्शन. ओके, इज दिस इन दिस डायरेक्शन. इफ डेल्टा यू इज पॉजिटिव, तो देखने से ही ऑब्वियस है कि डेल्टा यू पॉजिटिव है तो तभी उस डायरेक्शन में होगा, और डेल्टा यू अगर नेगेटिव है तो वो नीचे की डायरेक्शन में होगा. ओके, तो ये माइनस डेल्टा आर होगा. सो दिस इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर. ओके, इफ डेल्टा यू इज पॉजिटिव, and this is in the direction of minus delta r if delta u is negative. Now if we take the limit delta u going to 0, then in this limit this is defined as dr by du. Okay, and what is dr by du? dr by du हमारा क्या है? This is tangent to the curve at the point x y z. जब भी किसी कर्व की बात होती है हमारी, तो हम हमेशा
कर्व की बात हो रही है और टेंजेंट की बात हो रही है, तो टेंजेंट एट ए पॉइंट हम डिफाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि कर्व पर हर पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज होती है, राइट? सो यहाँ पर दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एक्स वाई जेड। ओके, नाउ इसको अगर पर्टिकुलर ले लो, सपोज पैरामीटर u को मैं t से डिनोट करती हूँ विच इज टाइम, तो इसका फिजिकल मीनिंग तुम्हें पता है। इसी तरह से अगर इसको u को और किसी तरह का पैरामीटर लेती हूँ तो ये कुछ और डिफाइन करेगा, राइट? सो यहाँ पर बिकॉज वी ऑल नो कि dr/dt रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी, एंड इसी तरह से dv/dt अगर अपन लिखेंगे तो देन इट रिप्रेजेंट्स द एक्सलरेशन अलोंग द कर्व। सो इसमें तो यहाँ तक ही है। नाउ वी कम टू द रूल्स ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन। अच्छा, तो रूल्स जो भी वेक्टर डिफरेंशिएशन के हैं दे आर ऑलमोस्ट सेम के जो कि आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में किए थे, बट यहाँ पर केवल एक ही डिफरेंस है। वो क्या है आपका? whenever you are writing for example derivative of a cross product, then you have to always follow the order. Okay, don't change the order. So rules for the vector differentiation are same. Okay, let me write down these rules, although they are written in your book, but let me also write down. So suppose we consider three vectors a, b and c. Are three vectors. Okay, and suppose or let me write down differentiable vector functions. Okay, because a, b, c are functions, so means these vectors are functions of some scalar variables. So these let a, b, c are differentiable vector functions of a scalar variable u. Okay, u हमारा स्केलर है, a, b, c are vectors. Okay, and phi, let phi is a differentiable scalar function of u. ओके, स्केलर फंक्शन और स्केलर में अंतर है। स्केलर अकेला स्केलर मीन्स नंबर है, केवल स्केलर लिखा है, तो फंक्शन मीन्स इट कैन बी फंक्शन ऑफ लाइक एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर मैंने फाई लिखा है, फाई कैन बी ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ओके, देन द फॉलोइंग लॉ होल्ड्स, देन ये क्या है हमारे d by du, let us say a plus b. So d by du of a plus b, this is equal to dA by du plus dB by du. So differentiation of a plus b with respect to u is equal to the differentiation of a with respect to u plus differentiation of b with respect to u. Okay, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. Okay, now d by du a dot b. Okay, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इन प्रिंसिपल, बिकॉज यहाँ पर हमारा डॉट प्रोडक्ट है. डॉट प्रोडक्ट में हमारा क्या है, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. सो दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम इफ, एंड ये कम्यूटेटिव भी होता है. ओके, सो इवन इफ यू चेंज द ऑर्डर देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बट आदत ऐसी ही बना लेनी है हमें
कि हमें चेंज नहीं करना है. सो दिस इज a डॉट db by du प्लस dA by du dot b, right? Next is d by du of a cross b. Now if you writing a cross b, then order must not be changed. So this means this is dA by du और a क्रॉस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड ज़्यादा बेटर लगता है मुझे. सो a क्रॉस db by du प्लस dA by du क्रॉस b. सो हमने यहाँ पर क्या किया, जहाँ पर डॉट है वहाँ पर तो डॉट ही रखा है. ओके, ऑल्दो इट इज ऑल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का है. ओके, बट यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है. सो इसलिए हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में ऐसे ही करते हैं ना हम, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. वही यहाँ पर हमने किया हुआ है, पर हमने क्या किया है कि जहाँ डॉट है वहाँ डॉट रखा है, अगर हमने क्रॉस लिया है तो क्रॉस रखा है, बस इतना ही अंतर है. ओके, नाउ d by du of phi u. ओके, अब phi हमारा स्केलर है. ओके, सो दिस इज phi du dA, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है. ओके, सो dA by du प्लस d phi by du टाइम्स दिस वेक्टर है, राइट. एंड इसी तरह से यू कैन मल्टीप्लाई थ्री वेक्टर्स, सो उनका भी डेरिवेटिव ले सकते हैं. सो d by du, ओके, a डॉट b क्रॉस c, इसको भी हम सिर्फ ऐसे ही याद रखेंगे कि जहाँ डॉट है वहाँ डॉट रखना है, जहाँ क्रॉस है वहाँ क्रॉस रखना है. सो अगेन फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, सो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन, इसको मैं फर्स्ट मान लेती हूँ, इसको सेकेंड, देन फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. तो जैसे हम करते हैं वैसे ही हम इसमें भी कर देंगे. सो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, सो दिस मीन्स d by du of b cross c plus second function differentiation of first function into second function. Okay, and again now you differentiate it, so this is equal to a dot, okay, first function into differentiation of second, so this is b cross dc by du plus a dot db by du क्रॉस c, एंड ये थर्ड टर्म एज इट इज आ जाएगी. सो थर्ड टर्म dA by du dot b cross c. So this is how we do it. Okay, so this one is d by du a dot b cross c. Similarly one can do it for cross. So d by du. मैम इसको आपने कैसे किया, एक्सप्लेन करना है इसको, जो सेकंड टाइप से किया था ना. अभी करती हूँ, एक सेकेंड. कौन सा, इससे पहले वाला, ये इससे जस्ट पहले वाला ना, तीन बैच, हाँ लास्ट वाला. ओके, सो तुमको क्या करना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग a डॉट b क्रॉस c विच इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स. तो a डॉट b क्रॉस c को करना है, तो जहाँ डॉट है वहाँ तो डॉट ही लेना पड़ेगा. तो फर्स्ट फंक्शन मैंने इसको a को फर्स्ट फंक्शन माना है एंड b क्रॉस c टुगेदर को मैंने सेकेंड फंक्शन माना है, राइट. सो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज आ गया इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो d बाई डी यू ऑफ b क्रॉस c प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो dA बाई डी यू इंटू सेकेंड फंक्शन. तो इंटू की जगह यहाँ पर डॉट आएगा क्योंकि यहाँ डॉट है,
इज दैट क्लियर? फर्स्ट लाइन। अब नाउ नेक्स्ट लाइन देखो, अब इसको ए को तो मैंने एज इट इज लिख दिया, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लगा दिया। अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ डी बाई डी यू ऑफ बी क्रॉस सी को, तो यहाँ पर दो टर्म आएंगी ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और ए डॉट तो कॉमन रहेगा। नहीं, बिल्कुल दूसरे तरीके से नहीं किया, बिल्कुल ऑर्डिनरी जो हम करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है, ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में करना है, बिल्कुल ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन की तरह करना है। बस इतना ही यहाँ पर ध्यान रखने का होता है कि जहाँ डॉट है वहाँ डॉट लगाना होता है, जहाँ क्रॉस है वहाँ क्रॉस लगाना होता है, बस इतनी सी चीज हमें फिक्स करनी है। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर क्रॉस है तो क्रॉस आ जाएगा, ए क्रॉस डी बाई डी यू, एंड यहाँ पर बी क्रॉस सी। यहाँ पर भी फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसको टुगेदर सेकेंड फंक्शन मान लिया। ओके, सो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, बट यहाँ पर क्रॉस है तो मैंने यहाँ पर क्रॉस रख दिया, प्लस डी ए बाई डी यू क्रॉस बी क्रॉस सी। एंड नाउ अगेन यहाँ पर जैसे ऊपर किया है बिल्कुल सेम वे में यहाँ पर करेंगे हम। सो दिस इज ए क्रॉस, ये क्या आ जाएगा हमारा, बी क्रॉस डी सी बाई डी यू, प्लस यहाँ पर दो टर्म आएंगी, तो देन फिर ए क्रॉस, ओके, इससे दो टर्म आएंगी ना इस वाली से, सो ए क्रॉस डी बी बाई डी यू क्रॉस सी, एंड ये टर्म एज इट इज आ जाएगी लास्ट टर्म, सो डी ए बाई डी यू क्रॉस बी क्रॉस सी। सो रूल्स जैसे बिल्कुल हमारे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में बिल्कुल सेम रूल्स हैं यहाँ पर, सिर्फ हमें एक तो क्रॉस प्रोडक्ट है जहाँ पर उसका ऑर्डर का ध्यान रखना है, और दूसरी चीज हमें जहाँ कहीं भी प्रोडक्ट आ रहा है तो वो डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है, कि जो भी है आप उसको, अगर डॉट प्रोडक्ट है तो हर जगह जहां डॉट है वहां डॉट ही रखेंगे, जहां क्रॉस है वहां क्रॉस ही रखेंगे। ओके, सो अभी अपन एग्जांपल करेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा हमें। ओके, सो लेट अस टेक दीज एग्जांपल्स। So if suppose two vectors are given to you, so vector A is equal to 5t square I plus tj minus t cube k, and vector B is also given to you. Vector B is sin ti minus cos tj. Okay, I love to put brackets. Okay, then find d by dt of A dot B and second दिया हुआ है d by dt of A cross B and चलो दो ही कर लो, सही पता चल जाएगा। सो d by dt of A dot B, तो इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं कि जो ये हमने फॉर्मूले लिखे हैं, दैट इज d by dt of A, यहाँ u की जगह t है, सो d by dt of A डॉट b है, तो हम या तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले हम डॉट प्रोडक्ट ले लें और फिर हम उसको विथ रेस्पेक्ट टू t हम डिफरेंशिएट कर दें, राइट। या हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ये राइट हैंड साइड पर है, वेक्टर ए लें, फिर डॉट प्रोडक्ट उसका डी बी बाई डी, मतलब फिर हम डिफरेंशिएट फर्स्ट इसको करके एंड इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें, ये भी हम कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू कि आप किस तरीके से करते हैं, बोथ आर राइट। ओके, सो यहाँ पर
इट्स सो सिंपल, ए डॉट बी है तो देन व्हाट यू कैन डू, ये डॉट प्रोडक्ट लेना हमारे लिए ज़्यादा इजी है, डॉट प्रोडक्ट में हम फटाफट कर देते हैं, कुछ सोचना नहीं है, राइट. सो वी टेक फर्स्ट डॉट प्रोडक्ट एंड देन वी डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू टी. सो आई थिंक यू कैन डू इट. सो जस्ट डू इट. क्या आ गया? Now by now you know how to take dot product. So let us first solve this one, okay, which is d by dt of a dot b. So what is a dot b? A is given to you, b is also given to you. So you can write a dot b immediately. कैसे लिख सकते हैं? I dot I is 1, I dot j is 0. We know. So हम यहाँ पे डायरेक्टली I का कंपोनेंट को I के कंपोनेंट से, j के कंपोनेंट को j के कंपोनेंट से, k के कंपोनेंट को k के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, बिकॉज ऑल अदर टर्म्स आर 0. सो ये क्या आ गया हमारा? 5t स्क्वायर साइन t, राइट, माइनस t cos t. इज दैट राइट? ओके, ये आ गया a डॉट बी. And now once you know a dot b, then you can just differentiate it. ये भी कर सकते थे हम. और हम क्या कर सकते थे? So ये क्या आ गया हमारा? इसको just differentiate कर दो. So it's a product of two functions. So first function into differentiation of second plus second function into differentiation of first, जैसे हम करते हैं, because it is a product of two functions. So this is first function 5t square, okay, into differentiation of second plus second function into differentiation of first. So tan t, okay, and sin t plus t sin t minus cos t. तो ये तो हमारा डायरेक्ट आ गया. और हम राइट हैंड साइड के उससे भी कर सकते थे. वो क्या था हमारा फॉर्मूला? अल्टरनेटिवली you can first write this formula, that d by dt of a dot b, which we know this is equal to a dot db by dt plus da by dt डॉट बी. ये भी हम कर सकते थे, तो इसको कर लो. ओके, सो फर्स्ट वेक्टर ए लिख लो एज इट इज. वेक्टर ए हमारा क्या था? 5t स्क्वायर आई प्लस टी जे माइनस टी क्यूब के एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस विद डी बी बाई डी टी. सो बी को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी. सो बी को हमारा डिफ्रेंशिएट करके लिख दो. सो ये क्या आ जाएगा आपका? साइन टी का कॉस टी आई एंड कॉस का माइनस साइन, सो माइनस साइन टी जे. एंड नाउ अब इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो. ये भी हम कर सकते हैं. सिमिलरली डू इट फॉर द सेकेंड टर्म. ये हाफ हुआ ना, डू इट फॉर द सेकेंड टर्म एंड देन राइट डाउन द रिजल्ट. ये भी कर सकते थे. समझ में आया ये? फर्स्ट वाला हाँ क्या था? हाँ, यहाँ पर डिफरेंशिएट करके लिख दिया ना. ये फर्स्ट टर्म लिखी है सिर्फ मैंने, सेकंड टर्म नहीं लिखी है अभी. पेन कॉपी रख के बैठते हो कि नहीं जब मैं पढ़ाती हूँ तो, कि बस सिर्फ ऐसे ही बैठ जाते हो हैं? जब पेन कॉपी रख के बैठो फटाफट पेन चला के देखा करो तुम भी मेरे साथ, है ना. केवल बुक में से नहीं, ये नहीं कि जिसके बुक खरीद ली है तो बुक को सामने रख के बैठ गए. नहीं, जब भी आपको अभी मैथ्स अगर करना है तो सबसे पहले कॉपी पेंसिल रख के जरूर बैठना है. ओके, बिना कॉपी पेंसिल के कुछ नहीं होता है. ओके, सो
कॉपी पेंसिल सामने रख के बैठना है, जो कुछ हो रहा है उसको खुद भी करके देखते जाना है साथ साथ। क्योंकि अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, अभी तो तुम्हें लगेगा बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है समझ में आ गया, इतना तो इजी है, ये तो हम कर ही लेंगे, इसमें क्या रखा है। लेकिन जैसे जैसे आपको दिन बीतते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि हाँ नहीं, हम पहले लिख लेते तो शायद अच्छा रहता। और मैडम इतनी अच्छी है नहीं कि वो तुम्हें लिखे लिखाए एकदम साफ सुथरे नोट्स दे दें, है ना। तो इसलिए जो है आपको ये मैं जो कुछ भी पढ़ाती हूँ वो साथ साथ करना है। ओके मैडम। हाँ, आई थिंक अभी आज यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू फॉर दिस थिंग टुमारो ऑल्सो। अभी हमारा पीरियड आज ट्यूसडे है ना, वेडनेसडे, थर्सडे एंड देन फ्राइडे को, वो सॉरी सैटरडे को है। सो वी मीट टुमारो, ओके, टिल देन तुम लोग अटेंडेंस वैसे ही लिख देना, क्योंकि अटेंडेंस इसमें ऑटोमेटिकली नहीं आ रही है और मैंने भी शीट बना ली है। सो नेक्स्ट टाइम से मे बी आई कैन टेक अटेंडेंस डायरेक्टली, ठीक है। ओके ओके, हैव अ गुड डे, हैव गुड टाइम्स, बाय बाय। Good afternoon.